Good morning, everybody. This video is for the people who are joining next week, and what will be there in the education content. I mean, those who are joining for the education का training purpose, उनके लिए ये सोचना समझना ज़रूरी है कि भाई एजुकेशन में क्या होती क्या है। तो उन्होंने बोला सर कि थोड़ा बहुत हमें बता दीजिए। मैं बोला ठीक है, ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि हम इसे सही तरीके से बता दें। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज देर आर व्हाट वी नो इज बेसिकली we will identify the primary trend. Which will basically give direction and strength. ये प्राइमरी ट्रेंड में डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है, बाद में सेकेंडरी ट्रेंड। Secondary trend will give you direction and strength by time factor. Now, just a minute. यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मिलेगा पहले वाला, इसमें आपको मिलेगा प्राइमरी ट्रेंड का स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, कि भाई प्राइमरी ट्रेंड कितनी मजबूत है और उसकी डायरेक्शन क्या है। ये मालूम पड़ जाएगा आपको इमिडिएटली जब आप वीकली में जाते हो या आप इसमें किसमें। 1 सेकेंड, लेट मी पिक अप द टूल एपिक पेन। या वीकली जाते हो तो आपको मालूम पड़ जाता है। इट इज दिस थिंग, सो आई विल जस्ट ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट इट लिटिल हियर। So primary trend is this is up, yeah, that is up from this its recent low. Then this remained in a horizontal axis for quite a longer period before it eventually make a breakout. ठीक है, so the primary trend is up and its low has been never violated, so that is primary trend is up. Now what is secondary trend? सेकेंडरी ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है? सेकेंडरी ट्रेंड की डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ब्रैकेटेड मार्केट। ये है सेकेंडरी ट्रेंड। दिस इज नॉट, लेट मी चेंज द कलर। इन दिस एंटायर सेशन इट इज जस्ट a consolidated phase of consolidation and it was a non-directional momentum. ठीक है, when you say it was a non-directional momentum, that means you are basically saying that at some point this will take a directional momentum. So this becomes a consolidation phase of consolidation. This is also not called as a secondary trend. No, this is not secondary trend because it is within the primary trend. So this is called as an intermediary trend. Third is intermediate. So when the first directional momentum take place, the correction to that particular directional momentum is a counter momentum. ठीक है, this is called intermediary trend. Then there is a momentum, counter momentum, momentum, counter momentum, momentum, counter momentum, momentum, counter momentum, counter momentum into 3 wave, then momentum, then there is a deep correction. Now this is the direction of this is primary trend is up. Whatever the interruptions are making, they are intermediary trend. The interruptions are intermediate on the weekly basis. ठीक है, then this becomes the maturity कि भाई ये मैच्योर हो गया है. But how do you recognize this as a maturity?
I told you direction and strength. Now the strength cannot continue to exhibit only strength. At some point, after a brief run, the strength has to weaken. So the primary trend has started elevation from here and it has first higher low. So let us recognize this as a primary trend. So this is just to give a glimpse on how actually works. Now this is until here is in a first elevation or accelerated trend. We can call it as a first elevation. First elevation. Remember, I never passed through this. I just followed this. Correct? After first elevation, you have an acceleration trend here. Now I have passed through it. Acceleration. Yeah, acceleration trend. Let's call it as an acceleration trend. Now I have passed through it. I have passed through the price. Now, why did I pass through the price in the acceleration but not in the elevation? Acceleration but not in the elevation. The reason is any momentum, whether if you are personally moving some object also, you will have an initial torque. I'm just talking in a physical characteristic of momentum. Then you will have a one large stroke. आप एक अगर टेबल को मूव कर रहे हो तो पहला आपका इनिशियल झटका देंगे, आप पहला उसको मोमेंटम में लेके आएंगे कि नीचे टेबल के नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी डिस्ट्रक्टिव कोई भी विथहोल्डिंग ऑब्जेक्ट या कोई भी स्टोन वोन ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा झटका देंगे पहला से, बाद में एक लंबा झटका देंगे जिसके चलते जिसका आपका फिजिकल एनर्जी कंज्यूम होगा और मैकेनिकल में डिलीवर होगा, और एक जो टेबल आप मूव करना चाहते हो उस सेकंड फेज में जो होगा वो फर्स्ट एलिवेशन फेज होगा एज ए फाइनेंशियल मार्केट में, तो वहां पे आपका एनर्जी हाई रहती है और वो 70 से 80% आपका डिस्टेंस कवर कर जाता है। उसके बाद आप थोड़ा एडजस्ट करते हो एंड दैट इज अ फेज ऑफ द करेक्शन। मैं आपको एक सिंपल जीवन में एक थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हो, क्योंकि जब आप फाइनल पुश करोगे तो उस फाइनल पुश में आपका जो टेबल एक जगह से है तो दूसरे जगह पे जहां पे आप फिट करना चाहते हो वो सही तरीके से बैठ जाए। सो दिस इज योर फाइनल पुश। एक बार वो जगह पे बैठ गई, देन देयर इज नो मोमेंटम, खत्म हो गई, देयर इज नो फिजिकल energy is been delivered to the table. So the same thing happens in the financial market. Financial market में क्या है कि प्राइस ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है। यहाँ पे वैल्यूएशन में हायर वैल्यूएशन भी होती है, लोअर वैल्यूएशन भी होती है। तो इसे हम प्राइमरी ट्रेंड कहते हैं। और वीकली में फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ दिस थिंग to here, I will just change the color to something like this, and I'll call this as an intermediate trend. Now ये intermediate trend का मतलब क्या है? Intermediate trend का मतलब क्या है कि ये बुल मार्केट में ये इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है, ये बुल मार्केट में इंटरफेयर कर। अदरवाइज वॉल स्ट्रीट में इसको कहा जाता है वॉल स्ट्रीट में इसको एक्चुअली सेकेंडरी ट्रेंड कहा जाता है।
सेकेंडरी ट्रेंड क्या आ जाता है पता नहीं, वो लोग क्यों ऐसे सेकेंडरी ट्रेंड, हम इसे इंटरमीडिएटरी कहना पसंद करेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज स्टिल अबव द प्राइमरी ट्रेंड, so it cannot be secondary trend. I'm sorry for that. One second, it's an intermediary trend. It's an intermediate trend. जब ये प्राइमरी ट्रेंड को तोड़ती है तभी हम उसे सेकेंडरी ट्रेंड कह सकते हैं, ठीक है, करेक्ट है। इस वॉल स्ट्रीट में कुछ लफड़ा हुआ है, वो लोग इसे भी वो इंटरचेंज कर देते हैं। सो आर वी गेटिंग एन अ बाउंस फ्रॉम हियर? एक मिनट, मैं यहां पे ले लेता हूं। Are we getting a bounce from here? And if we get a bounce from here, it will still remain primary trend. But ये जो प्राइमरी ट्रेंड की कैरेक्टरिस्टिक है, ये ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट करेगी या ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट करेगी। यहां अगर यहां से बाउंस होती है, इफ इट बाउंस फ्रॉम दिस प्लेस, इट विल रिफ्लेक्ट समथिंग लाइक दिस। उसका मतलब क्या है? द एक्सेलरेशन विल रिमेन द सेम ऑफ द प्रीवियस मोमेंटम स्ट्रेंथ। यहां पे ये जो स्ट्रेंथ है, अरे चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, बहुत कम इंटरप्शन में ऊपर आ गया है ये, और यहां पे हाईली एक्सेलरेशन में ऊपर आ गया। सो दिस कैरेक्टर विल रिपीट अगेन फॉर 1 इंटरप्शन, 2 interruption, and 3. So this will have its own momentum gain again. मैं कल्याण ज्वेलर के बारे में ऐसे ही लिया, मैंने सुबह खोला तो यही मिला, मैं लिया। वो कोई कंडीशन नहीं है कि मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं, एक्सक्यूज मी, ठीक है। कंडीशन नहीं है कि व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, नो, इट्स नॉट ए कंडीशन। तो this is where you will understand in which trend you are and what is the trend direction and strength. यहां पे मैंने लिखा है टाइम फैक्टर, यहां पे हमने लिखा है टाइम फैक्टर। भाई अगर यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए कुछ इतने साल लिया है, सम 10 years और 12 years, ठीक है, यहां पे 2 तरीके के टाइम फैक्टर आपको काम करेंगे। फर्स्ट, लेट्स टेक इट, एक बार देख लेते हैं कि भाई कितना साल लिया भाई यहां से यहां जाने के लिए, हम वो तो देख लेते हैं। चलो ठीक है, देखा 192 बार, यानी कि 3 साल कुछ लिया है शायद, हाँ 3 साल कुछ लिया। इस यहां पे हमने इस ग्रीन बार को हमने पोजीशन किया 192 बार। Will it take 192 bar from that Hinkabi? That is called Hinkabi, we call it. It won't take 192 bar, it may take 50% of it. 192 का अब 50% करो तो 93, 94 बार ऐसे कुछ लेगा ये। यहाँ पे कहीं आपको रिवर्सल मिलना चाहिए यहाँ पे। जब आप ये 50% क्यों? बिकॉज अगर तुम इसका 100% करेगा तो ये पूरा निकल जाएगा नीचे, प्राइमरी ट्रेंड से ये सेकेंडरी ट्रेंड में आ जाएगा, यानी कि मंथली रिवर्सल में, मंथली बियर मार्केट में चला जाएगा ये, ठीक है, मंथली बियर मार्केट में चला जाएगा, ठीक है। ये करीब 92 के आसपास। अच्छा, इसकी टाइम कैलकुलेशन करने का एक अंदाज रहता है, वो क्यों? वो अंदाज आपको इसमें से मिलेगा। ये जो शार्प्स है और जो इंटरमीडिएटरी है, ये शार्प है और ये जो इंटरमीडिएटरी है, इस पर ही आप एक टाइम कैलकुलेशन कर सकते हो। भाई साहब ये 90 बार के अंदर ये रिवर्सल के लिए तैयार होगा। ये डीप है, ठीक है, ये डीप है, और इसको अगर आप इसे समझ सकते हो कि भाई हाँ भाई मैंने यहां से यहां तक कितना समय लिया है, तो एक 60-70 बार तो नीचे आएगा ही आएगा। जब यहां पे आपको शॉर्ट सेल करनी है तो आप 3 महीने का आराम से, 2 महीने का, या हर महीना एक शॉर्ट सेल करते रहने का, 2 लॉट 3 लॉट फ्यूचर्स में शॉर्ट सेल करते हैं। पैसा बनाओ, पैसा बनाने के लिए आते हो, मेरा वीडियो भी पैसा बनाने के लिए देखते हो। तो ये सब चीज के लिए
आपको कम से कम 3 महीना लगेंगे, और इसके लिए बहुत एक कामनेस चाहिए आपके माइंड में कि मैं अभी अभी मैं पैसा अभी चाहिए, मेरे को अभी चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए। एक इसको सही तरीके से समझना चाहिए। आपने कभी गुरुकुल गए हो? गुरुकुल में आपको क्या किया जाता है? सुबह उठ के चांटिंग कराई जाती है। चांटिंग क्यों कराई जाती है सुबह उठ के? क्योंकि जो ब्लड फ्लो है आपके अंदर वो धड़ाधन ना भागे, चांट के वजह। संस्कृत में जो चांटिंग होती है, शब्दों का उपचार होता है, उसके बाद आपको एक कामनेस आती है कि ब्लड सर्कुलेशन के साथ आपका बॉडी का वार्म अप भी हो जाता है। तो उसके बाद एक कामनेस आती है, और आपको जो विद्या, जो एजुकेशन दी जाती है, उसमें से आपको समझ में आ जाता है। गुरुकुल ऐसे ही नहीं चलता है भाई। दूसरा देखते हैं, एटीरियल देखते हैं। चलो, हाँ, दिस इज अ मैसिव, यस, दिस इज एन सेकेंडरी ट्रेंड। अब ये सेकेंडरी ट्रेंड से ऊपर आ रही है, ठीक है। अब ये बन गया प्राइमरी ट्रेंड, हम इसे डेडिकेट करेंगे प्राइमरी ट्रेंड के। ये प्राइमरी ट्रेंड बढ़, ये न्यूज में अटक के इतना बड़ा गैप हुआ, ये सबको पता है, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज अ प्राइमरी ट्रेंड, एंड प्राइमरी ट्रेंड हैज गॉट अ 3 स्ट्रोक्स ओनली। डायरेक्शनल स्ट्रोक क्या है? फर्स्ट डायरेक्शनल स्ट्रोक, सेकंड डायरेक्शनल स्ट्रोक, थर्ड डायरेक्शनल स्ट्रोक। थर्ड वाज द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट, खत्म कर दो। बट यू ऑल्सो फाउंड एन अ शार्प करेक्शन ओवर हियर इंडिकेटिंग द एग्जॉशन। फिर नया हाई बनाया, फिर जैसे ही 3 कैंडल ब्रेक करता है, आप जयराम जी की बोलना रखा उसको। एंड नाउ what I want to say is that this is on the strongest elevation. तो इसमें आपका फर्स्ट पिवट है, ये फर्स्ट पिवट का ही ये सेकंड पिवट है, एंड दिस बिकम्स सेकेंडरी करेक्शन ना। दिस इज एक्चुअली अ सेकेंडरी ट्रेंड। यानी कि मेजर बियर मार्केट में चला गया है, ठीक है। जैसे ही ये तोड़ता है, जैसे ये तोड़ता है, इट इज एन सेकेंडरी ट्रेंड, ये बियर मार्केट में चला गया, ठीक है। अब बियर मार्केट में वेरी एग्रेसिव ट्रेंड लाइन मैंने डाली है। हाँ, मैंने एग्रेसिव ट्रेंड लाइन डाली है। 1 मिनट, मैंने एग्रेसिव ट्रेंड लाइन डाली है, एक ही टप्पे पे मैंने ट्रेंड लाइन डाली। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दिस लो इज नॉट बीन वायलेटेड एंड इट इज रिमेन हियर। हो सकता है ऐसा है कि ये जो इम्पल्स है, ये 1 2 3 4 5 करेक्शन हो गई है, एंड इट इज एब्सोल्युटली, अगर ये हायर लो भी है, इवन इफ इट इज अ हायर लो आल्सो और न्यू लो आल्सो, इट इज पोर्न टू गो अपसाइड। इट इज पोर्न टू गो अपसाइड। आप जब इसे देखेंगे, इसकी फर्स्ट मोमेंटम की स्ट्रेंथ देखेंगे एंड इसकी फर्स्ट मोमेंटम की स्ट्रेंथ देखेंगे, इट इज वेरी वीक। लेकिन आप जब सेकंड देखेंगे, धड़ल्ला करके निकला, थर्ड देखेंगे, धड़ल्ला करके निकला, एंड इसका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है आपका पेशेंस। अगर ये गैप अप होके निकलना शुरू हो जाता है तो ये करीब करीब 2400 के आसपास आके रुकता है। ये वहीं पे आके रुकता है जहां पे इसकी फर्स्ट ब्रेकडाउन हुई है, उसी लेवल पे आके रुकता है। क्यों वहां रुकता है? वहां कुछ लोग ये सोचोगे अरे आ जाएगा करके, लेकिन बाद में वो ट्रेड ही नहीं हुआ। I mean, the sell orders didn't get absorbed. So the people are stuck here, somewhere here. 2340 के आसपास people are stuck. तो ये थोड़ा बहुत यहां तक रिस्पॉन्स करेगा, एंड फ्रॉम 700 टू गोइंग टू 2100 इज अ 3-fold इनकम। ये आपकी मर्जी है। तो आपको समझ में आ रहा है कि एजुकेशन, मैं बिना कोई इंडिकेटर का बता रहा हूं यार, बिना कोई इंडिकेटर का ट्रेंड लाइन डालना भी कोई लोग नहीं जानते हैं, कुछ लोग बिना कोई इंडिकेटर का। इंडिकेटर जब डालेंगे तो आपके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र जैसा कुछ अस्त्र मिला रहेगा, अरे यार मैं बीसी एमसी सब तोड़ो, इसे इसके फ्यूचर्स बेचो, इसके ऑप्शन बेचो, ये बेचो, वो बेचो, तुम कुछ शुरू करेगा।
और पैसा कहाँ रखोगे तुमको खुद मालूम नहीं पड़ेगा। अरे क्या करो यार इतना पैसे का, चलो इनकम टैक्स दो, बच्चों को थोड़ा बहुत खर्चा करने के लिए दो, बाद में चलो फिर आगे चलो, जीवन है। हाँ, so when you are getting a training, you are not getting a training just simply because that you want to be get trained. It is, you are going to get an absolute knowledge, but the use of the knowledge is up to you. All right, thank you.